So children, what is there on our screen? Distinguish between mixture and compounds. Distinguish between mixture and compound. Okay. This is O Labs, means online lab, and this is funded by MITI University, and it is sponsored by Government of India for conducting online practicals for students of classes 9 to 12th. ठीक है, इसको अमृता यूनिवर्सिटी के द्वारा डिजाइन किया गया, जिसको सीबीएसई ने बोला है कि हमको इससे ऑनलाइन प्रैक्टिकल्स बच्चों को समझाना है। ऑल राइट, सो फर्स्ट हमारा प्रैक्टिकल देखिए क्या है, एम क्या है, टू डिस्टिंग्विश बिटवीन मिक्सचर्स एंड कंपाउंड्स। ओके, लेट अस स्टडी थ्योरी फर्स्ट। अब इसकी थ्योरी देखिए क्या है, थ्योरी मीन्स आर ऑब्जेक्टिव मीन्स आर एम। ठीक है, व्हाट इज द एम ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट? टू प्रिपेयर अ मिक्सचर, अ कंपाउंड by using iron fillings and sulfur powder and distinguish between these on the basis of appearance, that is whether it is homogeneous or heterogeneous. So appearance, that is homogeneity and heterogeneity. Then second focus of study is behavior towards magnet. Third, behavior towards carbon disulfide as a solvent. Fourth, effect of heat. And next, effect of heating with dilute HCl. ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं या एम है। ठीक है, सो व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव और एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट? टू प्रिपेयर ए मिक्सचर एंड ए कंपाउंड यूजिंग आयरन फिलिंग्स एंड सल्फर पाउडर एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन दीज ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंस, दैट इज होमोजीनियस है कि हेट्रोजीनियस है, बिहेवियर टुवर्ड्स ए मैग्नेट, बिहेवियर टुवर्ड्स कार्बन डाइसल्फाइड एज ए सॉल्वेंट, इफेक्ट ऑफ हीट, इफेक्ट ऑफ हीटिंग विद डाइल्यूट HCl। नाउ थ्योरी। अब इसमें देखिए थ्योरी में क्या होगा, लेट्स स्टडी हाउ मैटर इज क्लासिफाइड। ऑल मैटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, दीज आर प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर्स, ये सब हम पढ़ चुके हैं। अ प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। Furthermore, mixtures can be classified into homogeneous, that is uniform appearance and composition throughout, and heterogeneous. So matter is classified into pure substance and mixture. प्योर सब्सटेंस इज क्लासिफाइड इनटू एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। ये देखिए एक एलिमेंट है जिसमें एक ही प्रकार के एटम्स हैं, दूसरे सर्किल में कंपाउंड्स हैं जिसमें दो प्रकार के एटम्स आपस में बॉन्डेड हैं। मिक्सचर्स आर ऑफ टू टाइप्स, होमोजीनियस मिक्सचर्स लाइक दिस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स विच डू नॉट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन। देन व्हाट आर एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स? ये सब हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। एलिमेंट्स आर द सिंपलेस्ट सब्सटेंसेस इन नेचर. There are around 90 naturally occurring elements on the earth. They cannot be broken down into anything simpler by physical or chemical means. They consist of only one kind of atoms, and they can exist as either atoms or molecules. जैसे H2 एक मॉलिक्यूल है, एलिमेंट है, O2 मॉलिक्यूल है, एलिमेंट है, nitrogen N2 molecule, Cl2 it is molecule, but single Cl means chlorine atom, single N means nitrogen atom. What are compounds? A compound is formed when two or more elements combine chemically together. The elements react chemically and form chemical bonds between the atoms of the elements. In compounds, the constituent elements are always present in fixed proportion or fixed ratio, and therefore a compound has definite chemical composition. ये सब आता है ना आपको बच्चों? बोलो। यस Yes, sir. सर। हाँ, ये सब प्रैक्टिकल में हमको थ्योरी में लिखना है, इसलिए मैं दिखा रहा हूँ। आप चाहो तो इसका फिर मैं आपको स्क्रीनशॉट आप ले लेना, या मैं आपको स्क्रीनशॉट करके भेज दूंगा। The components of a compound lose their individual properties, and the properties of compound are totally different from individual components. For example, iron is an element which is metallic in nature, and has magnetic properties, and oxygen is an element which is colorless, odorless gas. When iron rusts, it reacts with atmospheric oxygen to form compound iron oxide. Iron oxide would have different properties from iron as well as different properties from oxygen. Iron oxide has different properties from those of iron and sulfur. Iron oxide is reddish brown, colored solid, and is
magnetic in nature. The components of a compound may be separated only by chemical means. The compounds are homogeneous in nature and have fixed melting points and boiling points. Examples: water is a compound, sodium chloride is a compound, ammonia is compound, ethanol is compound. All this we have already discussed in theory. Now, what is mixture? A mixture is combination of two or more substances which are not chemically the same. The composition of mixture is variable. It is not fixed. In a mixture, the components are present in any proportion and they can be identified visually with mixture. In the mixture, the individual components retain their own identities. जैसे आयरन और सल्फर का जब हम मिक्सचर बनाएंगे, iron will retain its properties. It will get attracted towards the magnet. Sulfur will retain its properties. It will not get attracted towards magnet, but it will get dissolved in carbon disulfide CS2. तो CS2 में सल्फर डिजॉल्व होगा, आयरन डिजॉल्व नहीं होगा. जब हम इनको हीट करके कंपाउंड बना देंगे आयरन सल्फाइड, तब क्या होगा? जो आयरन सल्फाइड बनेगा वो CS2 में डिजॉल्व नहीं होगा. इसका मतलब कंपाउंड की प्रॉपर्टीज कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट की प्रॉपर्टीज से डिफरेंट होती हैं. The properties of mixture are same as the properties of individual compounds. The properties of mixture are the same as the properties of individual compounds. ठीक है, मिक्सचर में जो भी उसमें इंडिविजुअल एलिमेंट्स हैं या कंपाउंड्स हैं, उसकी प्रॉपर्टी और मिक्सचर की प्रॉपर्टी सेम रहेंगी, लेकिन कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट की प्रॉपर्टी से डिफरेंट होती हैं. The individual components of mixture may be separated by physical methods. अगर मिक्सचर है तो हम फिजिकल मेथड से उसकी कंपोनेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं. कंपाउंड है तो सेपरेट नहीं कर सकते हैं. Homogeneous mixtures have uniform composition and appearance throughout, whereas heterogeneous mixtures have non-uniform composition throughout. This is the theory part that you have to write in your practical record. ठीक है, आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप यहां से ले सकते हैं. ये फर्स्ट पेज की स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए. दिस विल बी योर एक्सपेरिमेंट नंबर 1. ले लिया बच्चों स्क्रीनशॉट? Yes, sir. ओके, आप सेकंड स्क्रीनशॉट आप यहां से ले लीजिए. ये हो गया, ठीक है. दिस वुड बी सेकंड स्क्रीनशॉट. इसको भी ले लीजिए थ्योरी में लिखने के लिए. Sir, done. डन. ओके, उसके बाद थर्ड स्क्रीनशॉट ये ले लीजिए. ये लर्निंग आउटकम फिर आपको नहीं लिखना है, ठीक है. हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स तक लिखना है बस. तो ये इसकी थ्योरी हो गई. अब कमिंग बैक, सर अब हम आ जाते हैं किस पे? प्रोसीजर पे. सर एक डाउट है ठीक सर. है, हाँ बेटो बोलो. सर हमको इसका प्रैक्टिकल बनाना है क्या? आपको प्रैक्टिकल की जो कॉपी आती है, प्रैक्टिकल की कॉपी में लिखना है सारे एक्सपेरिमेंट्स को, क्योंकि इस प्रैक्टिकल पे बेस क्वेश्चंस एनुअल में आते हैं. यस सर. ठीक है, ओके. यस सर. नाउ थैंक यू. प्रोसीजर. अब देखिए ये प्रोसीजर में आपको दिख रहा है क्या? मटेरियल्स रिक्वायर्ड पहले देख लीजिए, क्या क्या मटेरियल्स लगेंगे. मटेरियल्स रिक्वायर्ड, डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं, सिर्फ नाम लिख सकते हैं बस. ट्राइपॉड स्टैंड, बेंट ग्लास ट्यूब, इसकी जरूरत नहीं है. बंसन बर्नर की जरूरत है. कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन की जरूरत नहीं है. ग्लास रॉड, वो सारे एक्सपेरिमेंट के लिए एक साथ दे दिया है. ठीक है, सो जनरली हमको ट्राइपॉड स्टैंड, बंसन बर्नर, ग्लास रॉड, सल्फर पाउडर, ठीक है, आयरन फिलिंग्स, बर्निंग मैच स्टिक नहीं, मैच स्टिक की जरूरत है, वॉच ग्लास, टेस्ट ट्यूब, मैग्नेट, चाइना डिश, डाइल्यूट HCl, कार्बन डाइसल्फाइड, वायर गॉस. ठीक है, हमको इन मटेरियल्स की जरूरत पड़ेगी ये प्रैक्टिकल करने के लिए, इसलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. इसमें से सिर्फ बेंट ग्लास ट्यूब की हमको जरूरत नहीं है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन की जरूरत नहीं है. नाउ प्रोसीजर कैसे? यहाँ पे रियल लैब प्रोसीजर लिखा है, आपको सिर्फ प्रोसीजर लिखना है. ओके, डू वन थिंग. प्रोसीजर
हमको नहीं लिखना है, ठीक है। जब कॉपी, अभी मैं समझा दूंगा, लेकिन कॉपी में आपको प्रोसीजर नहीं लिखना है। केमिस्ट्री की जो प्रैक्टिकल की कॉपी होती है उसमें प्रोसीजर नहीं लिखते, सिर्फ क्या लिखते हैं, एम, एपरेटस रिक्वायर्ड, थ्योरी, ऑब्जर्वेशन, ठीक है, और उसके बाद रिजल्ट। नाउ प्रिपरेशन ऑफ मिक्सचर यूजिंग आयरन फिलिंग्स एंड सल्फर पाउडर। कैसे हम मिक्सचर बनाएंगे? टेक अबाउट 14 ग्राम या 15 ग्राम, कुछ भी। टेक अबाउट 14 ग्राम ऑफ आयरन फिलिंग्स एंड 8 ग्राम ऑफ सल्फर पाउडर। मतलब सल्फर पाउडर का अमाउंट कम चाहिए, आयरन का ज़्यादा चाहिए, आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। इन ए बिग पेट्री डिश और ए बीकर, मिक्स देम वेल टू प्रिपेयर ए मिक्सचर ऑफ आयरन फिलिंग्स एंड सल्फर पाउडर। लेबल द मिक्सचर एस ए। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट प्रिपरेशन का। देन प्रिपरेशन ऑफ कंपाउंड यूजिंग आयरन फिलिंग एंड सल्फर पाउडर। पहले तो ये मिक्सचर प्रिपेयर हो गया आपका, आप कंपाउंड कैसे बनाएंगे? टेक अबाउट 14 ग्राम ऑफ फाइन आयरन फिलिंग and 8 gram of sulfur powder in a china dish. Mix them well and heat the content of china dish first gently and then strongly. Stir it constantly till a black mass, that is compound of sulfur and iron, is formed. When the black mass is formed, cool it and powder the black mass. Label the compound powder as B. जो कंपाउंड बनेगा उसको क्रश कर सकते हो, तो क्रश करके पाउडर में कर लेना, और उससे क्या बन गया आपका? कंपाउंड बन गया आयरन सल्फाइड। लेवल एज एट पार्ट बी। अब उसके बाद जो आपको डिस्टिंग्विश करने के लिए दिया, टू डिस्टिंग्विश बिटवीन आयरन फिलिंग्स एंड सल्फर पाउडर, मिक्सचर एंड कंपाउंड। पहला क्या था? अपीयरेंस, उसको देखने होमोजेनिटी एंड हेट्रोजेनिटी, ठीक है। तो इसको हम ऐसे नहीं लिखेंगे, एक टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कौन सा होमोजीनियस होगा, कौन सा हेट्रोजीनियस होगा, वो टेबल में आपको उसकी पिक खींच के आपको पेस्ट कर दूंगा। आप समझने के लिए देख लीजिए, हम लिखेंगे इसको टेबुलर फॉर्म में, इस तरह से पैराग्राफ में नहीं लिखते। ये समझाने के लिए इसमें है अपीयरेंस, होमोजेनिटी एंड हेट्रोजेनिटी। टेक सम पाउडर ए, that is iron filling and sulfur powder mixture in one watch glass, and mixture B, that is black mass compound, in another watch glass. Observe both of them carefully. Record your observation in table. हम क्या देखेंगे कि जो मिक्सचर था उसमें आयरन फिलिंग्स और सल्फर पाउडर आपको अलग अलग दिखाई देंगे, जबकि जो कंपाउंड बन गया उसमें आयरन फिलिंग और सल्फर पाउडर आपको सेपरेटली दिखाई नहीं देंगे। They are converted into a black mass, black compound known as iron sulfide. Then behavior towards magnet. Place a small quantity of mixture up A in a watch glass and move a magnet over it. Watch glass एक ले लेंगे या चाइना डिश ले लेंगे, उसमें मिक्सचर A डालेंगे और उसके ऊपर मैग्नेट को रोल करेंगे। क्या होगा? Similarly, place a small quantity of B, black powder, in another watch glass and move the same magnet over it. Examine the movement of magnet and record your observation. क्या ऑब्जर्वेशन होगा? जो मिक्सचर था जिसके लिए हमने हीट नहीं किया था, उसमें जो आयरन फिलिंग्स हैं वो मैग्नेट से सब चिपक जाएंगी, जबकि सल्फर पाउडर चाइना डिश में या वॉच ग्लास में रह जाएगा। जब सेकंड मिक्सचर लिया, कंपाउंड बी लिया आपने, ब्लैक पाउडर लिया, जब उसके पास आप मैग्नेट लेके जाएंगे तो वो मैग्नेट पे कुछ भी नहीं चिपकेगा। क्यों? क्योंकि आयरन सल्फाइड हो गया। आयरन सल्फाइड इज नॉन मैग्नेटिक। आयरन जो कि मिक्सचर में था कंपोनेंट, वो मैग्नेट में चिपक जाएगा, जबकि जो मिक्सचर जो आपने कंपाउंड बी लिया है वो कंपाउंड है, उसमें आयरन ने अपनी प्रॉपर्टीज लूज कर दी हैं, इसलिए आयरन सल्फाइड विल नॉट गेट स्टक ऑन दी मैग्नेट। And third was action of carbon disulfide. Take a small quantity of mixture A in watch glass and add 1 ml of carbon disulfide to it. Observe the mixture. हमने थोड़ा सा मिक्सचर A ले लिया जिसमें क्या था? आयरन और सल्फर, और हीट नहीं किया था, उसमें कार्बन डाइसल्फाइड डाल दिया। कार्बन डाइसल्फाइड एक अल्कोहल जैसा लिक्विड होता है। जब हम कार्बन डाइसल्फाइड डालेंगे, जो येलो कलर का सॉलिड था सल्फर का, वो उसमें डिसॉल्व हो जाएगा, आयरन डिसॉल्व नहीं होगा, इट विल सेटल डाउन। सो आयरन फिलिंग्स विल गेट settle down, whereas sulfur powder will get dissolved into carbon disulfide.
Similarly, we'll repeat it for the compound also. Take a small quantity of compound B in another watch glass and add 1 ml of CH2 to it. Observe it carefully. What will be observation? Nothing will get dissolved in carbon disulfide. आयरन सल्फाइड जो बन गया था वो डिजॉल्व नहीं होगा क्योंकि वो कंपाउंड है, अब उसमें सल्फर प्रेजेंट नहीं है. Then if of heat, take a small quantity of mixture A in a test tube and heat. Observe the change in the mixture after some. क्या ऑब्जर्व होगा कि मिक्सचर विल स्टार्ट बर्निंग विथ ए ब्लूइश फ्लेम. वो एक ब्लूइश फ्लेम, हल्की ब्लू कलर की फ्लेम के साथ वो जलने लग जाएगा. एंड वेरी पंजेंट, वेरी सफोकेटिंग स्मेल विल कम आउट. वो जो सफोकेटिंग एंड थ्रोट चोकिंग स्मेल आएगी, दैट स्मेल वुड बी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड गैस. तो जब मिक्सचर में सल्फर प्रेजेंट था, हम उसको हीट करेंगे तो सल्फर ऑक्सीजन से साथ कंबाइन करके जब जलने लगता है वो बर्न होगा, इट विल रिएक्ट विद सल्फर. सल्फर एंड ऑक्सीजन विल कंबाइन, देयर इज सल्फर डाइऑक्साइड गैस. वो सल्फर डाइऑक्साइड गैस जैसे हमारे नाक से अंदर जाएगी, हमें थ्रोट चोकिंग होगा और खांसी आना चालू हो जाती है. तो पंजेंट स्मेलिंग गैस कम्स आउट विच चोक्स द थ्रोट. दिस वुड बी द ऑब्जर्वेशन. एंड द मिक्सचर बर्न्स विद ब्लूइश फ्लेम. ठीक है. इफेक्ट ऑफ हीटिंग विथ, अच्छा, टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कंपाउंड पाउडर बी इन द टेस्ट ट्यूब एंड हीट इट फॉर द सेम पीरियड. क्या होगा? नो चेंज विल बी देयर. ठीक है, कोई भी गैस बाहर नहीं निकलेगी और थ्रोट चोकिंग गैस आपको नहीं निकलेगी इसमें. देन इफेक्ट ऑफ हीटिंग विथ डाइल्यूट HCl. टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर A in test tube and add few drops of dilute HCl into it. Then heat the content of the test tube gently and collect the gas formed in other test tube. मतलब क्या किया हमने? एक चाइना डिश में या टेस्ट ट्यूब में मिक्सचर ए ले लिया जिसमें क्या था? आयरन फिलिंग और सल्फर. उसमें हमने थोड़ा सा HCl डाला और हीट किया. HCl डाल के जब हम हीट करेंगे, HCl क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड. हीट करेंगे तो उसमें से बबल्स बनेंगे. बबल्स के बाद एक गैस निकलेगी, उस गैस को हम कलेक्ट करेंगे दूसरे टेस्ट ट्यूब में. फिर एक बर्निंग मैच स्टिक उसके माउथ पे लेके आएंगे. तो होता क्या है कि जब हम HCl डालते हैं तो आयरन रिएक्ट विथ HCl एंड हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस्ड. और हाइड्रोजन गैस के पास जब हम जलती हुई माचिस की तीली ले आएंगे तो इट बर्न्स विथ पॉप साउंड. इसमें से एक आवाज आती है पॉप. तो पॉप साउंड प्रोड्यूस होता है. इसका मतलब जो गैस निकली थी वो हाइड्रोजन गैस है. सिमिलरली वी विल रिपीट इट फॉर कंपाउंड बी ऑल्सो. तो कंपाउंड बी में जब HCl डाल के हीट करेंगे, नो ऑब्जर्वेशन विल बी देयर. ठीक है ना? तो उसमें से एक गैस तो निकलेगी. आयरन सल्फाइड जो आपका बना है उसको अगर HCl में डालेंगे और हीट करेंगे तो देयर विल बी अ गैस कमिंग आउट विच वुड हैव स्मेल सिमिलर टू दैट ऑफ एग वाइट. जब अंडे को बॉईल करते हैं, ठीक है, तो अंडे को बॉईल करने के समय जो एक स्मेल आती है वो वाली स्मेल की गैस आएगी. क्यों आएगी? क्योंकि जो FeS बना, आयरन सल्फाइड बना, आयरन सल्फाइड विल रिएक्ट विथ HCl एंड विल फॉर्म H2S गैस. सो जो H2S गैस हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बनती है, इट हैज एग लाइक स्मेल. सो ये इसका प्रोसीजर और ऑब्जर्वेशन है बच्चों. ठीक, इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप. ले लिया? Yes, sir. ऑल राइट. अब हम आ Yes, जाते हैं किसमें? वीडियो में. देखते हैं कैसे इसको लैब में इन्होंने किया. एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड. बच्चों वीडियो में आवाज आ रही है क्या आपको? No, sir. ओके. वीडियो में आपको ऑडियो नहीं आ रहा होगा, है ना? रुको मैं यस सर। रुको मैं Yes, इसकी sir. व्यवस्था, अभी इसकी व्यवस्था करता हूँ, अभी आएगा आपको. ठीक, एक सेकंड, गिव मी अ टाइम. मुझे दोबारा स्क्रीन शेयर करना पड़ेगा इसके लिए. अभी मैं करता हूँ, एक सेकंड. सो
I will have to present through Chrome tab instead of screen sharing. Distinguish between mixtures and compounds. That most of the matter around us exists as अभी आ गई आवाज mixtures बच्चों? of two or more components. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. A Okay. mixture is Okay. obtained by mixing two or more substances in any proportion and but it shows is the not properties of the constituent substances. These constituents can be separated easily by physical methods. For example, milk is actually a mixture of water, fat, and proteins. In today's daily life, it would be very difficult to live without using compounds. A compound is a substance composed of two or more different types of elements chemically combined in a fixed proportion. The new substance has totally different properties, and the constituent elements can be separated only by chemical or electrochemical reactions. Water is a good example of a compound. In this experiment, our aim is to distinguish between mixture and compound on the basis of appearance, हाँ बेटा, behavior वो नेटवर्क towards a स्पीड से हो रहा magnet, है. behavior आवाज में towards दिक्कत carbon आएगी. disulfide, and effect of heating with dilute HCl. Materials required: iron filings, sulfur powder, dilute HCl, carbon disulfide, spatula, magnet, glass rods, boiling tubes, dropper, watch glass, aqueous solution of copper sulfate, and a beaker. Procedure: here we take ferrous sulfide, which is a compound of iron and sulfur, to do the experiment. Upon strong heating, iron is combined with sulfur to form ferrous sulfide. Now, take a mixture of iron and sulfur in a beaker and mix the contents in it using a glass rod. After mixing, we can see the yellow-colored sulfur powder and iron filings separately. Now, take ferrous sulfide in another watch glass and mix it using another glass rod. Here, we cannot see iron filings or sulfur. Thus, we infer that the mixture is heterogeneous and the compound is homogeneous in nature. Now, show a magnet over the watch glass in which the mixture of iron and sulfur has been taken. We can see that iron filings cling to the magnet, which indicates that iron retains its properties. Now, show the magnet over the watch glass in which the compound is taken. We can see that no particle attaches to the magnet, which indicates that iron has lost its properties on forming a compound. Transfer a small quantity of mixture to a clean boiling tube using a spatula and a few drops of carbon disulfide into this boiling tube. Here, sulfur dissolves in carbon disulfide and forms a yellow-colored solution. Now, decant this yellow-colored solution to the china dish. After some time, we can see that the sulfur will reappear as yellow powder, and this indicates that sulfur retains its property. Similarly, transfer a small quantity of compound to a clean boiling tube and add a few drops of carbon disulfide into it and shake the boiling tube well. Here, no change is observed, which indicates that sulfur has lost its original properties after reacting with iron. Now, transfer a small quantity of the mixture to a boiling tube and place it in the test tube rack. Add a few drops of dilute HCl using a dropper.
We can see the evolution of glass bubbles, which indicates that iron reacts with dilute HCl and forms hydrogen gas. Fe plus 2HCl gives you FeCl2 plus H2. Similarly, transfer a small quantity of compound to a boiling tube and add a small quantity of dilute HCl into it. A gas evolves in the boiling tube. Now, cork the boiling tube which has a bent tube connected to it. Insert the other end of the bent tube to copper sulfate solution. We can see a black precipitate forming in the copper sulfate solution. Here, ferrous sulfide reacts with dilute HCl to form hydrogen sulfide gas. FeS plus 2HCl gives you FeCl2 plus H2S. The hydrogen sulfide formed reacts with copper sulfate solution to form a black precipitate of copper sulfide. CuSO4 plus H2S gives you CuS plus H2SO4. So children, have you observed the video carefully? Yes, sir. यस सर, कैसी लगी? Yes, sir. अच्छी थी। Sir, nice. नाइस, सर समझ में आ अटक गई? चल रही थी। एक्चुअली बेटा ये नेटवर्क स्पीड की वजह से वीडियो तो प्ले होती रहेगी, ऑडियो एकदम से अच्छी नहीं रहेगी। ऑडियो बीच बीच में अटक अटक के चलेगा। वो क्या होता है, अपने यहाँ की नेटवर्क एकदम स्टेबल वो नहीं होता ना, स्टेबल फ्लक्चुएट होता रहता है, कभी थोड़ा सा स्पीड कम हुई, थोड़ा ज्यादा हुई, थोड़ा, इसलिए ऑडियो कटता है, लेकिन वीडियो तो प्ले हो रहा होगा ना? बोलो Yes, sir. Yes, sir. यस सर। कि वीडियो भी अटक रहा था? और वीडियो भी बीच बीच में अटक रहा है। पूरा अटक रहा था अच्छा। थोड़ा थोड़ा। समझ में आया ओवरऑल? Yes, sir. कि दोबारा Yes, कि दोबारा sir. कि दोबारा प्ले करूं? Sir, आगे. Sir, आ गया। आ गया, ओके। सो नाउ आई शुड कम बैक अगेन। अच्छा, अब मैं चेक करता हूं आपसे कि आपको कितना समझ में आया, इसलिए मैं आपसे क्वेश्चंस पूछता हूं, ठीक है? नाउ यू विल हैव टू आंसर दीज क्वेश्चंस। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, which compound is formed during the chemical reaction between iron and sulfur in the lab? Option A, FeS. Option B, Fe2S3, FeS2, FeS3. ठीक है, आप बोलो, मैं क्लिक Sir, FES. एक कोई भी FeS, ठीक है, मैं क्लिक कर देता हूँ FeS। मैं आपके हिसाब से क्लिक करूंगा, ध्यान रखना, ठीक है? मैं अपने हिसाब से क्लिक नहीं करूंगा, आप जो बोलेंगे वो क्लिक करूंगा, फिर देखते हैं कौन से सही है कौन से गलत है आपके आंसर। नेक्स्ट, a student by mistake mixed iron fillings and sulfur powder. He wanted to separate them. Which would you advise him to use to dissolve the mixture? Boiling water, option C, एक बार सुन तो लो, बॉइलिंग वाटर, कोल्ड वाटर, कार्बन डाइसल्फाइड, वार्म वाटर, कार्बन डाइसल्फाइड, करेक्ट। क्वेश्चन 3, नेम द गैस ऑब्टेन्ड when dilute HCl is added to mixture of iron and sulfur. SO2, H2S, H2N, SO3. Sir, बोलो। hydrogen. हाइड्रोजन गैस H2, गुड। अभी क्या रिएक्शन थी? Fe plus 2HCl give rise to FeCl2 plus H2. वीडियो में ही रिएक्शन थी। ऑल राइट, नेक्स्ट, हाउ वुड यू सेपरेट iron from a mixture of iron and sulfur? Use a bar magnet। यूज से बाहर bar magnet. Use a bar magnet by centrifugation, by heating. हाँ ठीक है, use a Sir, bar option magnet, two. option B. Okay. Next, Option D. the gas obtained by the reaction of FeS and dilute HCl is Hydrogen sulfide. hydrogen sulfide gas. ठीक है, because FeS plus HCl will give rise to HCl will give rise to FeCl2
FeCl2 plus H2S, hydrogen sulfide gas is formed. Then next, name the products obtained by the reaction of CuSO4 with H2S. CuSO4 को H2SO4 के H2S के साथ रिएक्ट करेंगे, क्या प्रोडक्ट बनेगा? सर फर्स्ट H2SO4 CuS plus H2SO4 H2SO4. CuS plus H2SO4. First option is correct. Good. Then next. अरे कहाँ चला गया? 1 minute please. Okay. Question 7. When you add carbon disulfide in a test tube containing a mixture of iron fillings and sulfur, what do you observe after shaking the test tube well? Some brown gases are evolved, sulfur dissolved to form colorless solution, and iron filling settle down. A yellow solution is formed and iron filling settle down. Third. third one Sir, third. the third one. थर्ड वन पक्का येलो सॉल्यूशन ही बनेगा. Yes, sir. Yes, sir. फर्स्ट और सेकंड देख लो, फाइनल बताओ. सेकंड और थर्ड में से सर थर्ड ही चलो मैं थर्ड कर देता हूं आपके हिसाब से, ठीक है. देन नेक्स्ट इज व्हेन अ मिक्सचर ऑफ आयरन फिलिंग्स एंड सल्फर इज स्ट्रांगली हीटेड. आयरन फिलिंग एंड सल्फर Black. is strongly heated in China dish. What is the color of product obtained? Black. 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 Good. Then the smell of H2S gas is pleasant, fishy, odorless, rotten eggs like. Good. Then the 10th question. In a laboratory, what precautions must be taken with carbon disulfide? Keep it away from flame, keep it away from carbon, keep it away from distilled water, keep it away from iron sulfide. Iron sulfide. Iron sulfide. मैं बताऊं, वी शुड कीप इट अवे फ्रॉम फ्लेम, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड जितने भी होते हैं सब इनफ्लेमेबल होते हैं, दे कैच फायर व्हेन दे कम इन कांटेक्ट विद फ्लेम. लेकिन मैं अभी आपके हिसाब से ही इसको टिक कर रहा हूँ फोर्थ ऑप्शन को. ओके नाउ first one. Sir, First को ही कर दीजिए. The first one. अच्छा फर्स्ट को कर देते हैं. फाइन. First. नाउ लेट्स सबमिट इट. चलो अब हम चेक करते हैं अपने आंसर्स, ठीक है. सो देखिए पहले का आंसर हमारा देखते हैं सही है कि नहीं. ओके फर्स्ट करेक्ट है, देन सेकंड इज करेक्ट, थर्ड इज करेक्ट, फोर्थ इज करेक्ट, फिफ्थ इज करेक्ट, सिक्स इज करेक्ट, सेवंथ इज करेक्ट, एट्थ इज करेक्ट, नाइन्थ इज करेक्ट, टेंथ इज करेक्ट. बच गए बेटा आप, ठीक है. अगर आपके हिसाब से फोर्थ वाला करता तो आपका एक आंसर गलत हो जाता. सो आवर क्लास 9th B is an excellent class and we all together scored 10 out of 10. So congratulations to you all. thank you. Okay. Thank you, sir. thank you, sir. मजा आया, अच्छा लगा प्रैक्टिकल्स. Yes, sir. क्या Yes, हमेशा sir. अगर एवरीडे हम थ्योरी करते रहेंगे तो क्लास मोनोटोनस हो जाएगी ना, इसलिए बीच बीच में थोड़ा सा प्रैक्टिकल करना भी अच्छा है. ऑल राइट. सो नाउ अरे वाह रोमिसा, ये क्या बजा रही है? पोंपो. गुड. सो यू आर हैप्पी. नाउ स्विच ऑन योर कैमरा. जो आप विसलिंग कर रहे हैं वो आपके चेहरे पे भी दिखनी चाहिए विसलिंग. तो स्विच ऑन योर कैमरा. या सृष्टि, रोमिसा, हरीश, पुष्कर, ठीक समझ में आ गया बच्चों प्रैक्टिकल. अब हम क्या करेंगे, एक क्लासमेट की लैब मैनुअल कॉपी आती है जिसमें एक साइड रूल्ड रहता है, एक साइड अनरूल्ड रहता है, एक साइड लाइनिंग रहती है, एक साइड लाइन नहीं रहती. जिस साइड लाइनिंग है उस साइड हम लिखेंगे, और जो अनरूल्ड वाला पेज है, ठीक है, लेफ्ट साइड में, उसमें हम डायग्राम बनाएंगे. ठीक है. आपके पास लैब मैनुअल सबके पास बुक होगी. 9th की लैब मैनुअल है कितने लोग के?
कितने लोग के Yes, पास sir. नहीं है यस सर। ठीक है, तो उससे आप ये प्रैक्टिकल आप लिख लेंगे। उस प्रैक्टिकल हम लिखेंगे क्या, एम, मटेरियल्स, एम यानी ऑब्जेक्टिव, फिर मटेरियल्स रिक्वायर्ड, फिर थ्योरी, प्रोसीजर्स नहीं लिखेंगे, ठीक है, प्रोसीजर विल नॉट राइट। और उसके बाद ऑब्जर्वेशन इन टेबुलर फॉर्म। मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आप देख सको तो कैसे टेबल रहता है बुक्स में, नहीं तो मैं इसको स्क्रीनशॉट में आपको भेज दूंगा आपके क्लास में, ठीक है। ये देखिए ऐसे एक टेबुलर फॉर्म में पूरा आपको डिफरेंस रहेगा, जिसमें एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन, ठीक है। अदरवाइज मैं इसकी फ़ोटो खींच के पंकज सर को दे दूंगा, आपको भेज देंगे, ओके। तो उस प्रैक्टिकल का आप लिख लेंगे। इस तरीके से आपका एक एक्सपेरिमेंट आज ओवर, समझ गया। फिर इसको हम अपने हाथ से कब परफॉर्म करेंगे, जब कभी स्कूल खुलेगा, करेंगे जरूर, छोड़ेंगे नहीं। सर जैसी बायो की लैब मैनुअल होती है सर, वैसी केमिस्ट्री की भी बनेगी ना? बेटा बायो में तो वो आती है स्पाइरल पेजेस वाली आती है, अलग से पेज आते हैं, उसको हम फाइल में लगाते हैं, यस सर। वो वाली नहीं। ये आपकी इसी टाइप की एक कॉपी आती है, ठीक है, क्लासमेट की या किसी की भी मिल जाए, ठीक है। उसमें लेफ्ट साइड में ब्लैंक रहता है, अनरूल्ड रहता है, और राइट साइड में रूल्ड रहता है, लाइन रहती है। जिधर लाइन है उधर लिखेंगे। अब ब्लैंक वाले में हम क्या करेंगे, सिर्फ डायग्राम बनाते हैं बस, ओके। अच्छा, Yes, जो sir. हेडिंग, सर जो एक सेकंड बेटा, जो हेडिंग लिखेंगे आप, हेडिंग ब्लैक पेन से लिखेंगे, बाकी सब ब्लू पेन से, और डायग्राम पेंसिल से। इसके अलावा कुछ भी नहीं, कोई कलर नहीं, कोई डेकोरेशन नहीं, कोई आप वो अपने जो स्टिकर वगैरह लगाते हैं ना छोटी क्लासेस में अच्छे अच्छे से, वो स्टिकर वगैरह कुछ नहीं लगाना है कॉपी में, ठीक। अब आप बड़ी क्लास में आ गए हैं तो थोड़ा सा नीटनेस और सोवर्निटी क्लास में उसमें कॉपी में होनी चाहिए। सिर्फ इतना ही यूज़ करेंगे, ब्लैक पेन से हेडिंग लिखेंगे, कोई दूसरा कलर यूज़ नहीं करेंगे, ब्लू पेन से लिखेंगे और पेंसिल से डायग्राम बनाएंगे, और लेबलिंग करते वक्त स्केल का यूज़ जरूर करेंगे। ये नहीं कि अपने हाथ से टेढ़ी सी लाइन खींच दिया, कहीं भी लिख दिया ऐसे टेढ़ा टेढ़ा zigzag बना के, ऐसी लेबलिंग नहीं करेंगे। स्केल लेंगे और सीधी लाइन खींच के तब लेबलिंग करेंगे, ओके, ठीक है। जब आपका ये हो जाए तो इसकी PDF बना के आप मुझे भेज देना, मैं देख लूँगा आप कैसे कर रहे हो। हरीश, दामिनी सर एंड एवरीबडी, सर पर्सन पे भेजना है क्या पंकज सर के? आप मुझे भेज देना। केमिस्ट्री का आप डायरेक्ट मेरे पर्सनल पे भेज देना। यस सर। सर आपका नंबर नहीं है हमारे चलो पास। लिखो, फटाक से लिखो, मेरा नंबर लिख लो, ठीक है, 9406, सर 1 मिनट। हाँ, 9406 971